Hello everyone, welcome to Rotap. My name is Santosh and I came to know that students are getting afraid of the costing subject in the SEBI Grade A Officer exam क्योंकि अकाउंटिंग तो हमारी एनसीईआरटी से भी मिल जाती है या फिर एनसीईआरटी में पढ़ के अकाउंट से क्वेश्चन हो सकते हैं, बट कॉस्टिंग तो एनसीईआरटी में भी नहीं है, 11th 12th में भी नहीं पढ़ी है। तो मुझे रियलाइज हुआ कि कॉस्टिंग से बच्चों को डर लग रहा है। So I thought to start a series on the costing itself. That is a 5 MCQ a day series. तो हम accounts की series भी ला सकते हैं आगे. So if you want me to bring the account series as well, so do let me know in the comment section. ठीक है? But अभी के लिए मैं 5 MCQ a day series लाया हूँ costing के लिए. इसमें हम करेंगे क्या और इसके benefits क्या होंगे? Let's try to understand this thing. तो किसी भी टॉपिक या किसी भी चैप्टर से हम 5 MCQ कंसीडर करेंगे एंड आप सबको खुद को इवैल्यूएट करना है कि वेयर यू स्टैंड राइट नाउ इन टर्म्स ऑफ योर प्रिपरेशन लेवल। ठीक है, तो अपने आपको मार्क्स देने हैं और अगर प्रिपरेशन नहीं की है तो भी बेसिक पढ़ने के लिए बहुत अच्छी सीरीज है, क्योंकि इस सीरीज में हम क्या करने जा रहे हैं, क्वेश्चंस पढ़ेंगे, उनके जो ऑप्शंस हैं उनके कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे, क्वेश्चन के भी इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिससे कि क्लैरिटी डेवलप हो। और एमसीक्यू का एडवांटेज क्या होता है कि एमसीक्यू से रिटेंशन पावर बढ़ती है कॉन्सेप्ट की और कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने की हैबिट डेवलप होती है। तो ये एडवांटेज होता है एमसीक्यूज का। तो एमसीक्यू के फॉर्म में कोई भी चीज पढ़ते हैं तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है वो चीज। ठीक है, तो आज के सेशन में वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द ओवरव्यू ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, वेरी इजी टॉपिक और यू कैन से चैप्टर। वी आर गोइंग टू डू 5 MCQs बेस्ड ऑन दिस थिंग और आप सबको खुद को इवैल्यूएट करना है। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन नंबर 1 व्हिच सेज डैश डिनोट्स द फॉर्मल अकाउंटिंग मैकेनिज्म बाय मींस ऑफ व्हिच कॉस्ट्स आर असर्टेन्ड बाय रिकॉर्डिंग देम इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो यहां पे योर कीवर्ड इज फॉर्मल अकाउंटिंग मैकेनिज्म एंड ascertainment of cost. So people might be confused here that answer could be costing, but no, answer is not costing. Please listen to me very carefully. होता क्या है ना कि costing is your ascertainment of cost. That is correct. But when we talk about the cost accounting, it is the formal accounting mechanism. When you try to calculate the cost through following some procedure, through following the format, then the cost accounting is there. Like we have in the cost accounting, what do we have? We have prime cost, right? So first you calculate prime cost, then you calculate works cost, then you calculate cost of production in the cost sheet, then you calculate cost of goods sold, then you calculate cost of sales, isn't it? So when you prepare the cost, when you try to ascertain the cost by following a certain procedure or format, then what it is cost accounting, not the costing. So costing is simply ascertainment of cost, but on the other hand cost accounting is this, right? So the correct option is option number D. Now what is this cost control? We are going to understand this as well in our further slides, don't worry. So we have already discussed this thing. Question number 2 says which of the following is or are correct objectives of the cost accounting. So now we are talking about the objective of cost accounting. First one says ascertainment of the cost. So definitely yes, cost accounting ka one of the objective is the ascertainment of cost. Therefore we are doing the cost accounting, na? Okay. Second thing is determination of selling price and the profitability. It is also correct. Sir, why it is correct? You have told us that cost of sales is there. You are finding out the cost of sales per unit and aggregate, and now you are saying it is also important for determining the selling price and profitability. Why? Let me tell you why. See, I have told you up to the cost of sales, right? कि इतना तो फाइंड करता है कॉस्ट अकाउंटेंट। अब इफ मैनेजमेंट रिक्वायर्स फ्रॉम द कॉस्ट अकाउंटेंट टू इंक्लूड द मार्जिन, दैट इज द प्रॉफिट मार्जिन इन इट एज वेल, तो क्या कॉस्ट अकाउंटेंट मना कर देगा? उसको तो करना पड़ेगा ना। सो
depending upon the need of the management, this cost sheet can be modified as well. ठीक है, सो कॉस्ट ऑफ सेल्स आने के बाद में हम यहाँ पे प्रॉफिट भी ऐड कर सकते हैं. तो हमारा क्या आ जाएगा नीचे, सेलिंग प्राइस आ जाएगा. अगर हमने प्रॉफिट ऐड कर दिया, सेलिंग प्राइस इन एग्रीगेट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट आ जाएगा, isn't it? So yes, one of the objective is determination of selling price and profitability as well. क्योंकि कॉस्ट आएगी तभी तो मैनेजमेंट देखेगी ना मैं कितना मार्जिन इसमें प्रॉफिट लूंगा, और तब हमारा सेलिंग प्राइस आएगा. तो ऑब्वियसली सेलिंग प्राइस और प्रॉफिटेबिलिटी के लिए भी कॉस्ट अकाउंटिंग यूज हो रही है. सो इट इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है, then comes the cost control and cost reduction. So both are the objectives of cost accounting. So correct answer would be all of the above. Please try to pay attention on the words here. It says cost control and it says cost reduction. Let me explain you with the help of an example. Cost control में management try to limit the expense within the standard limit set. Let me give you an example. अंबानी की बेटी की शादी है, ठीक है, 1000 करोड़ का खर्चा है. अब मैनेजमेंट है, चलो अंबानी की बेटी शादी रहने दो, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग फर्म ले लेते हैं. मैनेजमेंट ने ये बोला जो भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उससे कि सारी मैन्युफैक्चरिंग एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ यूनिट्स की मैन्युफैक्चरिंग जो करनी है 1000 करोड़ में करनी है. ठीक है, अब जो भी एग्जीक्यूट करने वाले वहाँ सुपरवाइजर हैं, जो भी मैनेजर्स हैं, वो इस चीज का ध्यान रख रहे हैं कि सारी की सारी कॉस्ट 1000 करोड़ के नीचे हो. तो दिस इज कॉस्ट कंट्रोल. एक सेट स्टैंडर्ड है, उसके नीचे ही कॉस्ट रखनी है. दिस इज कॉस्ट कंट्रोल क्लियरली. व्हाट इज दिस कॉस्ट रिडक्शन नाउ? मैनेजमेंट ने देखा कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 ले लेते हैं कि 23-24 में जैसा मैनेजमेंट ने कहा था कि 1000 करोड़ के नीचे कॉस्ट रखना, जितने थे मतलब जो मैनेजर था उसने ये एग्जीक्यूट कर दिया, या कॉस्ट अकाउंटेंट था उसने एग्जीक्यूट कर दिया, कॉस्ट 1000 करोड़ के नीचे रखी. नाउ मैनेजमेंट बिकम्स ग्रीडी. उसने कहा 24-25 के लिए कि सेम यूनिट्स प्रोड्यूस करो विद इन 999 करोड़. दिस इज कॉस्ट रिडक्शन. उसने स्टैंडर्ड लिमिट को ही कम कर दिया. तो जब हम कॉस्ट कंट्रोल की बात करते हैं तो एक सेट है, उसके नीचे लिमिट रखनी है, बट कॉस्ट रिडक्शन तो कभी खत्म ही नहीं होगा. There is always a scope to reduce the cost. This is what cost reduction says. On the other hand, when we talk about the cost control, it is like limiting the cost within a set standard, within a predefined set standard. So this is the basic difference between these two. Understood? चलो, let's move ahead. ये cost sheet का फॉर्मेट है जो मैंने यहाँ पे बता दिया था. ठीक है, let's look at it again. So we have what? Direct material consumed, we have direct employee. ये cost sheet सबको पता होनी चाहिए. And I am emphasizing on this cost sheet because I know it is important, right? So therefore I have included it in the PPT itself so that you might have a good look at this cost sheet, right? So पहले हमारा क्या है? Direct material है, direct employee है, then we have the direct expense. It becomes your prime cost. ठीक है, अब जो मेजर कंपोनेंट है वो है वर्क्स कॉस्ट. वर्क्स कॉस्ट में क्या क्या ले लेते हैं हम? ज़्यादा कुछ नहीं, फैक्ट्री ओवरहेड जो भी हैं वो ले लेते हैं, साथ में ओपनिंग और क्लोजिंग. अभी समझ में ना आए तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी मोटे दिमाग से समझना है हमें. ठीक है, अभी बेसिक समझना है, धीरे धीरे वी विल मूव टू द एडवांस कॉन्सेप्ट एज वेल. सो प्राइम कॉन्सेप्ट हमारा आ गया, डायरेक्ट मटीरियल, डायरेक्ट एम्प्लॉय, डायरेक्ट एक्सपेंस. अभी डायरेक्ट क्या चीज़ है? डायरेक्ट वो चीज़ है अगर हम एक पर्टिकुलर यूनिट ऑफ गुड्स, एक पर्टिकुलर यूनिट ऑफ गुड है, उसमें जो सामान लग रहा है या उसमें जो लेबल लग रहे हैं या उसमें जो अदर एक्सपेंसेस हैं, इफ दे आर आइडेंटिफिएबल, इफ द कॉस्ट इज डायरेक्टली आइडेंटिफिएबल और एट्रीब्यूटेबल टू दैट यूनिट ऑफ गुड, देन इट इज डायरेक्ट कॉस्ट. उसका भी एग्जांपल ले लेते हैं, अभी समझ में आ जाएगा. सोफा है हमारे पास, सोफे में जो टिम्बर लग रहा है, सोफे में जो लकड़ी लग रही है, द कॉस्ट ऑफ दैट टिम्बर इज योर डायरेक्ट कॉस्ट. बात समझ में आ गई? बट जो उस प्रोडक्शन फर्म में जो सोफे जहां बन रहा है, वो जो प्रोडक्शन फर्म है, वहां जो सुपरवाइजर है, ठीक है, वहां जो सुपरवाइजर है और वहां जो वो चेक सुपरवाइज कर रहा है सारे लोगों को, दैट इज इनडायरेक्ट कॉस्ट. क्योंकि डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं है, उस आइडेंटिफिएबल नहीं है उस गुड में. इस रिमोट का एग्जांपल लेते हैं, इसमें प्लास्टिक लगा है, सो द प्लास्टिक दैट इज इन दिस रिमोट, दैट विल बी द कॉस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस प्लास्टिक, विल बी व्हाट? Will be your direct cost. But
ये जो रिमोट है बहुत सारे रिमोट्स के साथ बना था। उस मैन्युफैक्चरिंग फर्म में अगर किसी मशीनरी के थ्रू ये रिमोट्स बन रहे हैं, उसमें लिब्रिकेटिंग ऑयल लगा हुआ है, उसमें नट्स एंड बोल्ट्स लगे हुए हैं, तो क्या उसकी कॉस्ट इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसमें कितना लिब्रिकेटिंग ऑयल लगा होगा, इसको बनाने के लिए, एक यूनिट ऑफ गुड को बनाने के लिए कितने नट बोल्ट उस मशीन में लगाए थे? नहीं ना। तो ये सब इनडायरेक्ट कॉस्ट में आती है। बात समझ में आ गई? ठीक है, प्राइम कॉस्ट हो गया, हमारा फैक्ट्री कॉस्ट और वर्क्स कॉस्ट आ गया। अब ये फैक्ट्री कॉस्ट और वर्क्स कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं एक मोटा मोटा बता देता हूँ आइडिया कि इन तीनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि जो भी एडमिन ओवरहेड होंगे दैट रिलेट्स टू द प्रोडक्शन एक्टिविटी, उसको अगर हम इंक्लूड कर देंगे वर्क्स कॉस्ट में तो हमारा बन जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में तो कुछ भी डिफरेंस नहीं है सिवाय इन एडजस्टमेंट के कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड ऐड कर दो और जो क्लोजिंग स्टॉक है फिनिश गुड्स का उसको लेस कर दो तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बन जाएगा। तो ध्यान रखने वाली चीज़ है वो ये है कि प्राइम कॉस्ट क्या है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में मतलब प्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी ओवरहेड हैं सारे इंक्लूड हो जाएंगे। बात समझ में आ गई? और यहाँ तो सारे डायरेक्ट हो जाएंगे और ओवरहेड का मतलब ही होता है इनडायरेक्ट सारी चीज़ें। ठीक है, तो डायरेक्ट से प्राइम कॉस्ट आ जाएगा और जो प्रोडक्शन से रिलेटेड जितनी भी कॉस्ट होंगी अगर सबको हम ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा विद प्रॉपर एडजस्टमेंट ऑफ फिनिश्ड गुड्स एंड द एडजस्टमेंट ऑफ द वर्किंग प्रोसेस। ये समझ में भी नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, बाद में आ जाएगा। ठीक है, अभी हमको मोटी बुद्धि से सारी चीजें समझनी है। ठीक है, आगे देखो, this becomes important and now this becomes most important. Why I am saying so? See, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जनरल की बात कर रहा है, नॉट रिलेटेड विद द प्रोडक्शन पार्ट। तो अगर ऑफिस में कोई बैठा है, जैसे प्रोडक्शन फैसिलिटी है और मान लेते हैं मैं अकाउंटेंट हूँ, मैं ऑफिस में बैठा हूँ, उसकी अकाउंटिंग एंट्री कर रहा हूँ, सारे जितने भी खर्चे वर्चे हो रहे हैं, तो जो मेरे को सैलरी मिल रही होगी वो यहाँ पे आएगी एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में। एडमिन के जो मतलब जो बाकी जो ऑफिस से रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं सारे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में आ जाएंगे जनरल में। ठीक है, तो अकाउंटेंट की सैलरी यहाँ नहीं आएगी, अकाउंटेंट की सैलरी यहाँ आ जाएगी। किस में आएगी अकाउंटेंट की सैलरी? दिस कॉस्ट ऑफ सेल में। ध्यान देना है यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में नहीं आएगी। ठीक है, ध्यान देना है। मार्केटिंग से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस हैं सारे के सारे कहाँ आएंगे? कॉस्ट ऑफ सेल्स में आएंगे। सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ द कंडेंस फॉर्मेट ऑफ द कॉस्ट शीट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज which of the following is not an example of indirect cost? So I have already explained you what is indirect cost and what is direct cost. So this question becomes very easy for you to attempt, right? Lubricating oil, the question is asking about which is not. So it is definitely indirect cost, so this should not be the answer. Consumables, it is the indirect cost. Nuts and bolts, it is also the indirect cost. Timber and furniture is a direct cost, huh? It is directly identifiable with the furniture we have. Even if we have table, if we have chair, if we have sofas, we can directly identify the cost of the timber that is being used in that furniture itself, right? So what it is direct cost. ठीक है, office stationery no, so correct answer is option number D here. Let's move ahead with the fourth question. Which of the following constitutes the formula of overhead? तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। ओवरहेड क्या होता है? ओवरहेड सारे इनडायरेक्ट कॉस्ट से मिलके बनते हैं। तो व्हाट डू वी हैव इन द इनडायरेक्ट कॉस्ट? वी हैव इनडायरेक्ट मटेरियल, वी हैव इनडायरेक्ट लेबर, वी हैव इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। सो द आंसर इज, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, लेट्स मूव अहेड। क्वेश्चन नंबर 5 says, please evaluate yourself as well. हाँ, out of 5 marks, how many marks did you get in this particular session? Write it in the comment section as well. नेक्स्ट क्लास तभी होगी। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा कि 5 में से कितने किए हैं। हाँ, अगर एकदम ही न्यू है, कॉस्ट बिल्कुल ही सर के ऊपर थी पहले से ही, तो कोई बात नहीं, बट हल्का फुल्का भी आइडिया है तो 2-3 नंबर तो आने चाहिए। ठीक है, सो 5th क्वेश्चन सेज, डैश इज एनीथिंग फॉर विच अ सेपरेट मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट इज रिक्वायर्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ, मैं स्टार लगा देता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट। कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि कॉस्ट ऑब्जेक्ट, कॉस्ट यूनिट, कॉस्ट ड्राइवर और कॉस्ट सेंटर में। एक एक करके एक्सप्लेन कर देता हूँ, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन।
Let's start with the cost object. Cost object is anything for which a separate measurement of cost is required. Like for example, let's say car. टाटा है हमारे पास, ठीक है, बहुत ही बढ़िया कंपनी. अब टाटा चाहती है कि वो पर यूनिट ऑफ कार, मतलब एक कार को बनाने में कितनी कॉस्ट आ रही है वो निकालना चाहती है. तो सेपरेट मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट इज रिक्वायर्ड, तभी तो वो कितने में सेल करेगी, तभी तो पता कर पाएगी ना टाटा. तो दिस इज कॉस्ट ऑब्जेक्ट. जब हम क्या की बात करते हैं, व्हाट की बात करते हैं, सो वी टॉक अबाउट दी कॉस्ट ऑब्जेक्ट. ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं. रिमोट कॉस्ट ऑब्जेक्ट है फॉर विच सेपरेट measurement of cost is necessary for the management to be able to find out the selling price of it. So this is what cost object is. But ये cost unit क्या है? Cost unit होती है उस cost object को किस basis पे measure कर रहे हो, on what basis you are measuring it. For milk it is 1 liter. तो per liter cost क्या है milk की? So that per liter is your cost unit. Per unit, per liter is your cost unit, but milk itself is your cost object. बात समझ में आई? ये डिफरेंस है इनके बीच में जो कि बच्चे कंफ्यूज होते हैं. अब तो क्लियर हो गया होगा. पर लीटर. अब कॉस्ट ड्राइवर क्या होता है? कॉस्ट ड्राइवर होता है विच बेसिकली इंक्रीज और डिक्रीज द कॉस्ट, विच इंपैक्ट द कॉस्ट. दैट इज व्हाट कॉस्ट ड्राइवर इज. नाम से पता चल रहा है ना, ड्राइवर विच इज ड्राइविंग द कॉस्ट. अब मान लो कार है, मैं कार ही का एग्जांपल लेते रहता हूँ. मान लो कार है, तो उस जितनी बड़ी कार होगी उतनी ज़्यादा कॉस्ट होगी ना, लॉजिकली, इजंट इट? हाँ, फीचर्स भी, वो भी ड्राइवर है. तो इस तरह से जितना मटेरियल लग रहा है तो वो कॉस्ट ड्राइवर है. ठीक है, तो ये एग्जांपल है कॉस्ट ड्राइवर का. कॉस्ट सेंटर कैन बी अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट एज वेल. कॉस्ट सेंटर भी जैसे कि पूरी कंपनी है, उसको डिपार्टमेंट वाइज अगर हम कॉस्ट में कन्वर्ट कर दें तो हर डिपार्टमेंट कॉस्ट सेंटर हो जाएगा. तो कॉस्ट सेंटर के लिए भी तो हम लोग कॉस्ट अगर आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ कॉस्ट ऑब्जेक्ट. सो कॉस्ट सेंटर इज कैन बी अ टाइप ऑफ कॉस्ट ऑब्जेक्ट एज वेल. ठीक है, तो कॉस्ट सेंटर क्या, सिंपल एग्जांपल से अगर डिपार्टमेंट में बांट दिया, कोई भी कंपनी है, टाटा का एग्जांपल आगे ले लेते हैं, तो उसने देखा कि मार्केटिंग में कितना कॉस्ट आ रही है, प्रोडक्शन में कितनी कॉस्ट आ रही है. ठीक है, तो इस तरह से अगर डिपार्टमेंट में बांट दिया तो इट इज दे आर दी कॉस्ट सेंटर्स. ठीक, बात समझ में आ गई? तो हमारे हो गए 5 क्वेश्चंस आउट ऑफ 5 क्वेश्चन. तो इसका आंसर तो ऑप्शन नंबर बी है. हाउ मेनी क्वेश्चंस हैव यू डन करेक्टली, लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन. ठीक है, ये तो हमारा हो गया. ये कॉस्ट सब्जेक्ट मैंने समझा दिया है. तो एनीथिंग फॉर विच अ सेपरेट मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट इज डिजायर्ड, लाइक in the product we have car, shaving razor. In the service category as well, what do we have as the cost object? Telephone hotline or taxi service. Process, melting process. ठीक है, you can take activity as well for the cost object. Now here is a difference between cost subject and cost unit. We have already discussed this thing, so I'm not going to read it again. Okay, I'm going to read summary for you. Think of cost object as who or what. ठीक है, what you are costing, like car, like milk. But when you talk about the cost unit, na, how much you need to understand, how much or on what basis per liter of milk. This is what your cost unit is. ठीक है, this is your homework question. This also you need to comment in the comment section. देखता हूँ कि किसको कितना आता है. ठीक है, easy question and I'll explain you as well the concept, interrelated concept as well in this particular video only. So our taxi provider charges minimum rupees 80. It is charging minimum rupees of 80. Thereafter rupees 12 per kilometer. So rupees 80 is fixed. After that he is charging rupees 12 per kilometer for a particular distance to travel. ठीक है, the behavior of this conveyance cost is what? Fixed cost, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, नन ऑफ द अबव. ये तो क्या ही दे रखा है एडमिनिस्ट्रेटिव. ठीक है, चलो जो भी है मैं बता देता हूँ कि फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है. देन यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड यू हैव टू कमेंट इट इन द कमेंट सेक्शन. ठीक है, सो फिक्स कॉस्ट इज विच रिमेन कॉन्स्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रोडक्शन और इररिस्पेक्टिव ऑफ द सर्विसेज ऑफर्ड. दैट इज व्हाट योर फिक्स कॉस्ट इज. एग्जाम्पल लूँ,
लेट्स सपोज कि हमने फार्मर्स का एग्जांपल ले लेते हैं। ये स्पेस फार्मर ने रेंट पे ली टू कल्टीवेट एनी क्रॉप, ठीक है, इसको रेंट पे करना पड़ रहा है इस जमीन के लिए, और इसका जो रेंट है दैट इज 10,000 रुपीज। अब अगर फार्मर इतने ही एरिया में अपनी जो भी कल्टीवेशन है वो कर रहा है, तब भी 10,000 रेंट देना पड़ेगा, क्योंकि रेंट तो पूरा लिया है उसने। इतना कर लेगा तब भी 10,000 देना पड़ेगा, इतना कर लेगा तब भी। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रोडक्शन he is doing, he has to pay a rent of 10,000. So rent is a type of fixed cost. Now what is this variable cost? Variable cost जो आउटपुट के साथ चेंज हो जाए, जो कॉस्ट आउटपुट के साथ चेंज हो जाए। एग्जांपल दिस रिमोट, अगर इसका एक रिमोट बनना है मैन्युफैक्चरिंग फर्म में तो कम प्लास्टिक लगेगा, 2 बनेंगे तो और लगेगा, 3 बनेंगे तो और लगेगा, 4 बनेंगे तो और लगेगा। तो द मटेरियल इज योर, दिस मटेरियल, दिस प्लास्टिक मटेरियल इज व्हाट योर वेरिएबल कॉस्ट। से भी वेरिएबल कॉस्ट कमेंट में बताना और इसका आंसर भी कमेंट में बताना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। वी आर गोइंग टू मीट इन द नेक्स्ट 5 MCQ a day क्लास। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।